آپ 10 منٹ ویٹ کریں، میں معلوم کر کے خود بتاتی ہوں یا کسی سے کہلوا دوں گی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یوسف علی خان۔ اس نے سر ہلایا۔ میں انفارم کرتی ہوں، میں پیشگی شکر گزار ہوں، آپ یہیں رہیں گے؟ وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں وہیں گراسی لان پر ٹہل کر انتظار کرتا رہا۔ 10 منٹ بعد ایک کم عمر لڑکا آیا۔ آپ یوسف علی خان ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا تو اس نے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ ہم عاشق علی خان ہیں، ہم کو مس روبینہ نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے جا کر یوسف علی خان کو بتاؤ کہ لڑکی کا حالت بہتر ہے، شاید اسے ہوش آ جائے، رات کو اس کا آپریشن ہوگا۔ شکریہ بھائی عاشق، میں نے کہا۔ اپنی مس روبینہ کا بھی شکریہ ادا کر دینا۔ وہ شکریہ پر اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اپنی مس روبینہ کہنے پر ہوا تھا۔ وہ اپنی کم عمری کے باوجود عاشق مزاج لگتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے چن کر نام بھی رکھا تھا۔ حسن علی نہیں آیا تھا، اس لیے میں وقت گزاری کے لیے وہیں گھاس پر دراز ہو گیا۔ شام ہونے کو تھی اور میں نے صبح ناشتے کے بعد ابھی تک بھی کچھ نہیں کھایا تھا سوائے ایک کافی کی۔ بھاگ دوڑ میں یہ احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب ذرا سکون ملا تو بھوک پیٹ کے اندر شور مچانے لگی تھی۔ میں حسن علی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے تو ہم کھانے کے لیے نکلیں، مگر وہ تھا کہ جیسے اندر ہی رہ گیا تھا۔ مغرب تک میری بھوک کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنی جیب میں رکھی نوٹ بک کا ایک صفحہ پاڑ کر اس پر لکھا، کھانا کھانے جا رہا ہوں، اور یہ کاغذ ونڈ شیلڈ وائپر تلے ٹکا دیا۔ ہسپتال اسلام آباد کی روایات کے مطابق ویران سی جگہ پر تھا۔ خاصی دور جا کر مجھے ایک پان کا کیبن نظر آیا۔ میں نے اسے پوچھا، یار یہاں کھانے پینے کو کوئی جگہ ہے؟ اس سڑک پر آگے چلے جاؤ، ایک جھگی ہوٹل ہے، وہاں پر کھانا اچھا ملتا ہے۔ پان والے نے پھرتی سے پان پر کتھے چونے کا لیپ کرتے ہوئے بتایا۔ اس نے میرے لباس سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کھاتا پیتا بندہ ہوں، اس لیے آگے مشورہ بھی دیا، صاحب آپ ٹیکسی رکشہ پکڑ کر کسی اچھے ریسٹوران میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے مشورے کا شکریہ ادا کیا اور جھگی ہوٹل ہی میں کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ دور جانے کا مطلب تھا کہ وقت زیادہ لگتا اور اگر تاخیر ہو جاتی تو حسن علی کا مزاج بھی برہم ہو سکتا تھا، اس لیے میں جھگی ہوٹل تک ہی گیا۔ شام کا وقت تھا، پکے کھانوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ اس میں سب سے نمایاں تنور سے نکلنے والی گرما گرم روٹیوں کی خوشبو تھی۔ میں نے فرائی دال اور روٹی کا آرڈر دیا۔ باہر کا گوشت کھانے کا میں قطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حسن علی مجھ پر بڑا گوشت کھانے کی پابندی لگا رکھی تھی۔ وہ مجھے صرف بھیڑ یا دیسی مرغ کا گوشت کھانے دیتا تھا۔ دال فرائی بھی مزے کی تھی۔ گرم روٹیوں کے ساتھ ایسا مزہ آیا کہ میں کھاتا چلا گیا۔ اچانک مجھے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ میں چونکا، ارد گرد نظر دوڑائی۔ دائیں طرف موجود میز پر ایک شخص چائے پی رہا تھا، مگر چائے پینے کی بجائے مجھے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا اس نے جلدی سے نظریں پھیر لی۔ اس کا انداز مشکوک تھا۔ جب تک میں اس کی طرف دیکھتا رہا وہ اپنی چائے کی طرف متوجہ رہا، لیکن صاف لگ رہا تھا اس کی دلچسپی مصنوعی نوعیت کی تھی۔ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کھانا تقریباً کھا چکا تھا۔ پہلے میرا ارادہ چائے پینے کا بھی تھا، لیکن اس شخص کو دیکھ کر مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فوری طور پر واپس ہسپتال جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں پہلے ہی ایک چکر میں تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور واپس ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سڑک جس پر میں جا رہا تھا اس کے دائیں بائیں جنگل تھا، سلیقے سے اگائے درخت تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی سے سڑک پر پڑی ہوئی سوئی بھی نظر آ سکتی تھی۔ جب کوئی میرے تعاقب میں نہیں آیا تو میں نے خاصا سکون محسوس کیا تھا۔ جب میں بل دے کر پلٹا تھا تو چائے پینے والا غائب تھا، وہ مجھے باہر بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا جیسے میرا وہم تھا، وہ شخص کسی خاص وجہ سے میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ اب مجھے حسن علی کی فکر ستا رہی تھی۔ ہسپتال سے غائب ہو کر میں نے اچھا نہیں کیا تھا۔ ممکن ہے وہ واپس جانے کے لیے میرا انتظار کر رہا ہو۔ اسی سوچ نے مجھے اپنے ارد گرد سے غافل کر دیا تھا، اس لیے مجھے اس گاڑی کی آمد کا اس وقت پتہ چلا جب وہ سر پر آن پہنچی۔ اس کے بریک چرچرائے اور پھر 3 افراد اس میں سے اتر کر میری طرف لپکے۔ 2 کے پاس ہاتھوں میں ذرا چھوٹے ڈنڈے تھے جن پر ربڑ جیسی کوئی شے چڑھی تھی۔ تیسرے کے پاس ریوالور تھا۔ اس نے مجھے للکارا، اوے کھڑا ہو جا، ہلنا مت ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس کا مقصد تھا اس کے دونوں ساتھی اپنے ڈنڈے سکون سے میرے سر پر آزمائے، لیکن ظاہر ہے میں اس کی ہدایت پر عمل کر کے اپنا سر توڑوانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس کی ناقابل ذکر جگہ گولی مارنے کی دھمکی نظر انداز کر کے میں نے جھٹکا دیا۔ ایک حملہ آور کا ڈنڈا شائی کی آواز کے ساتھ میرے سر کے اوپر سے گزرا۔ اس بدبخت نے اتنی زور سے ہاتھ گھمایا تھا جیسے انجہانی کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہو۔ دوسرے نے موقع سے فائدہ اٹھا کر میرے جھکے ہوئے سر پر ڈنڈا آزمانا چاہا۔ اس دوران میں پہلے والے کو لات رسید کر کے دور پھینک چکا تھا۔ ڈنڈے سے بچنے کے لیے میں دوڑا اور مارنے والے کے پیٹ میں گھس گیا۔ اسے بہرحال ڈنڈا چلا دیا تھا جو وہیں لگا جہاں ریوالور والا گولی مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ بار تقریباً بے اثر تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ شور اس نے مچایا۔ میرے سر کی ٹکر نے اس کے پیٹ میں ہلچل مچا دی تھی، مگر اس نے ڈنڈا نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی میں پیچھے ہٹا اس نے مشتعل ہو کر ہاتھ گھمایا۔ بچتے ہوئے بھی ڈنڈا بائیں بازو پر لگا اور مجھے ایسا لگا جیسے بازو ناکارہ ہو گیا ہو۔
इसी असना में लात खाने वाला बिफरे हुए बैल की तरह फुनकारे मारता आया। इसका वार मेरे दाएं पहलू पर लगा था। डर से तड़प कर मैंने दोबारा लात चलाई और उसे दूर फेंक दिया। फिर झुकाई देकर वार नाकारा किया और उसके पेट में इस बार मुक्का मारकर उसे भी नाकारा कर दिया। लात खाने वाला जमीन पर यूं तड़प रहा था जैसे निजा के आलम में हो। पेट में मुक्का खाने वाला भी हिम्मत हार बैठा था। फुगाड़ी के साथ टिका हाँप रहा था। कालबन ये पेट भरकर खाने का असर था। मेरे जहन पर चाय कुमार की वजह से मैं तीसरे फर्द यानी रिवाल्वर वाले को फरामोश कर बैठा था। उसने मेरी गफलत से फायदा उठाकर चुपके से मेरे सर पर वार किया। अंधेर दुनिया यकदम रंगो नूर से भर गई थी। मेरी आंखों तले रंग बिरंगे सितारे से फटे। मैंने रिवाल्वर वाले की आवाज सुनी, हरामी कहीं का। इसके साथ दूसरा ज्यादा सख्त वार मेरी गुद्दी पर पड़ा और मुझे बस इतना याद रहा कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिर रहा था। मैं बिल्कुल नहीं जान सका था कि ये लोग कौन थे और मुझे इस तरह अगवा करने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। वो चाहते तो गाड़ी से उतरे बगैर मुझे गोली मार सकते थे। इस तरह हमला करके मुझे काबू करने का मकसद अगवा करके ले जाना था। इसके लिए उन्होंने मार खाना भी गवारा किया। बेशक इस्लामाबाद जरा वीरान सा शहर है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का निजाम खासा अच्छा है। दिन दिहाड़े अगवा या डकैती की वारदातें शाज़ ही होती हैं। सिर्फ अरशद बिल्ला ग्रुप के लोग मेरे लिए इतने बेताब हो सकते थे कि सरे शाम एक रोशन शाहराह से मुझे अगवा करके ले जाने की कोशिश करें। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो जो कोई भी थे मेरी लम्हाती गफलत का फायदा उठाकर अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे। होश में आने पर मुझे अपने सर शानों पर भारी पत्थर जैसा लग रहा था। जालिम ने बड़ी बेदर्दी से सर पर वार किया था। मैं किसी सख्त जगह पड़ा था। अपनी पुश्त तले मुझे नमी और सर्दी महसूस हो रही थी। खासी देर बाद जाकर मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हुई कि आंख खोल कर देख सकूं। मैंने पहले हल्की सी आंख खोली। मैं किसी वीरान नजर आने वाले कमरे में फर्श पर पड़ा था। बाईं तरफ से रोशनी का एहसास हो रहा था। इस तरफ दीवार पर पीले रंग का बल्ब रोशन था। कमरे की दूसरी शय में खुद था जो नंगे फर्श पर पड़ा था। एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी, गोया कोई तहखाना था। किसी को वहां ना पाकर मैंने उठ बैठने में कोई हर्ज नहीं समझा। अपना सर टटोला। बेदर्दी से किए जाने वाले वारों ने खाल को फाड़ दिया था और खून बालों में जम चुका था। उठते ही मुझे शिद्दत का चक्कर आया। मैं खिसक कर दीवार तक गया और उससे टेक लगाकर गहरी सांसें लेने लगा। चंद मिनट बाद मेरी हालत बेहतर हुई तो मैंने उठकर सबसे पहले उस तहखाने का जायजा लिया। ये 10-20 फुट का तहखाना था। एक तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। जहां सीढ़ियां खत्म हो रही थीं वहां लोहे का एक दरवाजा नजर आ रहा था। वो दरवाजा बंद था। जमीन से कुछ 10 फुट की ऊंचाई पर सीढ़ियों से मुखालिफ समत वाली दीवार पर रोशनदान था। इससे आधी तारीकी की झलक बता रही थी कि बाहर रात है या यह रोशनदान किसी और बंद जगह पर खुलता था जहां बाहर की रोशनी नहीं आती थी। मेरे पास घड़ी नहीं थी। घड़ी क्या, मेरे पास से सिवाय एक पतलून और कमीज के सब ले लिया गया था। मेरा पर्स और जूते तक गायब थे। मैंने सर हिलाते हुए सोचा, नहायत छिचोरे किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ा हूं। शुक्र है कपड़े नहीं उतारे। मेरे पास इंतजार करने के सिवा कुछ चारा नहीं था। तहखाना खासी गहराई में था, इसलिए उसकी जमीन और दीवारों से सेल आ रही थी। इसी वजह से मुझे होश आते ही नमी और सर्दी का एहसास हुआ था। मेरी पतलून और कमीज का जो हिस्सा जमीन से लगा था वो नम हो रहा था। मैं सीढ़ियों पर जरा ऊपर होकर बैठ गया। मुझे हसन अली का ख्याल आ रहा था। जब उसने वापस आकर जीप पर लगा रुक्का देखा होगा तो झुंझला गया होगा, और फिर जब मैं वापस नहीं पहुंचा हूंगा तो उसकी झुंझलाहट तशवीश में बदल जाएगी। उसने मुझे तलाश करना शुरू कर दिया होगा। महापारा को इतला की होगी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। दरमियान में मैंने एक बार उठकर दरवाजा चेक किया। दरवाजा बाहर से बंद तो था ही, खासा मजबूत भी था और खाली हाथ से इसे कोई रुस्तम ज़मां ही तोड़ सकता था। मैं सब्र करके वापस बैठ गया। घड़ी ना होने की वजह से वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा अंदाजा था कि निस्फ रात के बाद का वक्त था। गोया मैं 4 से 5 घंटे बेहोश रहा था। मई के महीने में इस्लामाबाद में खासी गर्मी होती है। तहखाने में भी घुटन का एहसास होने लगा था। ऊपर सीढ़ियों पर गर्मी महसूस हुई तो मैं दोबारा फर्श के पास आ बैठा। वक्त गुजरने के साथ बेचैनी में इजाफा हो रहा था। मैं फर्श पर उतर कर टहलने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अगवा करने वाले कौन थे और इनके जहन में क्या था। मेरे बारे में वो क्या फैसला करते। इंतजार की कैफियत इतनी जालिम होती है कि अगर मौत की हो तो इंसान इसके भी जल्द आने की दुआ करता है। मैं भी चाहता था कि मेरे नसीब में जो है वो जल्द अज जल्द सामने आ जाए, लेकिन ना तो मौत और ना ही नसीब में लिखा इंसान की मर्जी से जल्दी या देर से आता है। तंग आकर मैंने सोने का फैसला कर लिया। हसन अली ने एक बार मुझे ये भी समझाया था कि अगर किसी चक्कर में फंस जाओ और कुछ करने के लिए ना हो तो आदमी को सो जाना चाहिए। मैं फर्श की नमी और ठंडक की परवाह के बगैर लेट गया, बल्कि अब तय खाने में जो गर्मी और घुटन सी हो रही थी, इसमें फर्श की नमी और ठंडक अच्छी लग रही थी। सर में होने वाला दर्द कम करने के लिए मैंने योगा की एक मश्क की।
इससे ज़हन और जिस्म हल्का फुल्का हो गया था। इसके बाद मुझे नींद आने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। ना जाने कितनी देर मैं सोता रहा, फिर खतरे के एहसास ने मुझे चौंकाया। मैंने तड़प कर करवट ली। इस करवट ने मुझे उस ठोकर से बचाया जो मेरे मुंह पर पड़ने वाली थी। एक भारी भरकम पेशावरी चप्पल मेरे चेहरे के पास से गुजरी। दूसरी ठोकर पड़ने से पहले ही मैं लुढ़क कर उस शख्स से दूर चला गया। खबीस का बच्चा, नाकाम रहने वाले ने मुझे गाली थी। मैं उछल कर खड़ा हो गया। तहखाने में 2 अफराद का मजीद इजाफा हो गया था। एक तो वही पठान था जिसने मुझे ठोकर मारने की कोशिश की थी। उसका सुर्ख चेहरा अपनी नाकामी पर मजीद सुर्ख हो गया था। वो गुर्रा कर मेरी तरफ लपक रहा था कि उसके पंजाबी नजर आने वाले साथी ने रोक लिया। आराम से खान, ये बड़ी कुत्ती शाह है। खान ने नाकाबिले आशाज जुबान में बताया कि उसने किस तरह बड़ी कुत्ती अशिया को किस तरीके से दुरुस्त किया है। मैंने सुकून से कहा, गालिबन नशा में तुम्हारा खानदान भी शामिल होगा। तुम्हें देखकर इसका अंदाजा हो रहा है। मेरे जुमलों ने खान को बिल्कुल बेकाबू कर दिया था। वो अपने साथी के रोकने के बावजूद अरने भैंसे की तरह डकराता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं अपनी जगह से हिला नहीं और जैसे ही वो नजदीक आया मैं यकदम तिरछा होकर फर्श पर गिरा। अपने दोनों पांव जरा फैलाए और जैसे ही उसकी एक टांग मेरे दोनों पिंडलियों के दरमियान में आई, मैंने उसे गिरफ्त में लेकर आगे की तरफ रोल किया। वो पहले ही खासी तेजी से आ रहा था, ऊपर से मैंने उसकी रफ्तार को महमीज दी और वो खासी ताकत से मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। जिस मुंह से चंद लम्हे पहले तक मुगलजात बरामद हो रहे थे, अब उससे खून की पिचकारियों के साथ कई अदद दांत भी निकले थे। इन सब के अलावा कुछ चाय वाय भी बरामद हो रही थी। बस अब कोई हरकत न करना। दूसरे ने पिस्तौल निकाल लिया। मैं रुक गया। पठान एक बार फिर गालियां देता हुआ मेरी तरफ आने लगा था। इसे रोको, मैंने पिस्तौल वाले को खबरदार किया, वरना मुंह के साथ इसकी हड्डियां भी टूटेंगी। खान, तुम्हें क्या कहा था? इसका साथी को राया। अब खामोश रहो या बाहर चले जाओ। पिस्तौल वाले को मैं पहली बार देख रहा था। ये ना तो इन लोगों में से था जो मुझे अगवा करने आए थे और ना ही मैंने इसे पहले कहीं और देखा था। तुम कौन हो और मुझे इस तरह अगवा करके हबस बेजा में रखने का मकसद क्या है? मैं दरियाफ्त किया। वो दुबला लेकिन तवील कामत शख्स था। सर के बाल सामने से उड़े हुए थे और उम्र 40 के आसपास थी। बज़ाहिर कोई खास बात न होने के बावजूद वो मुझे इस तनुमंद पठान और अगवा करने वालों से ज्यादा खतरनाक नजर आया। इसकी ठहरी हुई सर्द आंखों में अजीब सा तासर था। कोई आम आदमी इन आंखों ही खुद देख कर डर जाता। वो मुस्कुराया, बरखुदार, इतनी जल्दी मुनासिब नहीं है सवालात के लिए। अभी तुम्हें कुछ अरसा हमारे पास रहना है। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला। इस जमाने में ये चीज नई नई आई थी और खासी महंगी हुआ करती थी। आमतौर से सहाफी हजरात इसे इंटरव्यू लेने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब तो खैर जदीद तरीन डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर आ गए हैं जो चंद घंटे बिला रुके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि ये टेप रिकॉर्डर 1 घंटे से ज्यादा तुरानिये की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे। मैंने इसे देखा और खुश दिली से बोला, इसके बजाय तुम कोई बड़ा टेप रिकॉर्डर ले आते तो अच्छा होता। उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और रिकॉर्डर मेरी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, अभी मैं इसे ऑन करूंगा और तुम इसमें एक पैगाम रिकॉर्ड करोगे। कान से पैगाम दो। पठान ने नफरत भरे अंदाज में एक पर्चा मेरी तरफ फेंका। मैंने उठाकर देखा, इस पर लिखा था, पापा मैं इन लोगों के पास खैरियत से हूं और इस वक्त तक खैरियत से रहूंगा जब तक आप इनका मुतालबा नहीं मान लेते। मैंने पर्चा पिस्तौल वाले की तरफ फेंक दिया। अव्वल तो मैं इस किस्म का कोई पैगाम रिकॉर्ड कराऊंगा ही नहीं, और करा भी दिया तो इसका कोई फायदा नहीं है। पापा मेरे हकीकी बाप नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे पाला है। मैं नहीं जानता हूं अगर तुम उनकी सगी औलाद को भी ले आते तो इनसे अपना कोई मुतालबा मनवा नहीं सकते थे। फिक्र मत करो, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। जितना तुमसे कहा जा रहा है इतना करो, और अगर मैं ना करूं तो? वो मुस्कुराया, तब भी कुछ नहीं होगा। इस वक्त भी रिकॉर्डर चल रहा है। तुम्हारी सारी गुफ्तगू टेप हो चुकी है। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया था। उसने नहाई चालाकी से अपना मकसद हासिल कर लिया था। मुझे गाफिल समझकर खान ने अचानक मुझ पर हमला किया। गालिबन अपनी झीम मिटाना चाहता था। उसने अचानक मेरी कनपट्टी पर मुक्का मारने की कोशिश की। मैं उसकी तरफ से पूरी तरह होशियार था, इसलिए आसानी से उसका वार खाली गया और फिर मेरा मुक्का उसकी नाक पर पड़ा। यूं उसके नाक नक्शे में जो कमी रह गई थी वो भी पूरी हो गई। उसकी नाक से भी खून बह निकला था। वो ज़िबा किए जाने वाले बैल की तरह टकराया। अहमक, पिस्तौल वाले ने उसे डांटा। कहा था इससे दूर रहना। खान ने खूनखार नजरों से मुझे देखा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जरूर, मैंने जवाब दिया। पहले जाकर अपनी मरहम पट्टी कराओ। ज्यादा खून बह गया तो बाज़-ओ-कात चांबर होना भी मुश्किल हो जाता है। वो खूनखार नजरों से मुझे घूरता सीढ़ियों की तरफ चला गया। मैंने पिस्तौल वाले से पूछा, तुम्हारा मुझे रोकने का लंबा चौड़ा प्रोग्राम है? क्या मैं इस तहखाने में इस तरह रह सकूंगा? उसने नफी में सर हिलाया। बस कल तक की परेशानी बर्दाश्त कर लो। बाज़ मजबूरियों की वजह से यहाँ रखा है। जल्द तुम्हें एक बेहतर जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन कोई हरकत न करना।
बस किसी वजह से तुम्हें मुस्तकिल उसी जगह रहना पड़ेगा। एक मसला और है, यानी खाने के बाद अखराज का। खाने को तो कुछ ना कुछ दोगे ही, लेकिन इसके अखराज का क्या होगा? वो मुस्कुराया। सुबह तक सब्र कर सकते हो तो कर लो, पर न यहीं कोई गोशा इस्तेमाल कर लेना। मैंने सर हिलाया। चलो खाना और अखराज का मसला तो सुबह होगा, लेकिन पानी तो दे सकते हो। मैंने खासी देर से पानी नहीं पिया है। पानी मिल जाएगा। उल्टे कदमों सीढ़ियां चढ़ने लगा। रिकॉर्डर उसने पहले ही जेब में डाल लिया था। मैं से खासे फासले पर था, लेकिन वो मेरी तरफ से एक लम्हे को भी गाफिल नहीं हुआ था। निस्फ सीढ़ियां चढ़कर वो मुड़ा और तेजी से खुले दरवाजे से निकल गया। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और पानी की एक बोतल और बिस्किट का एक डिब्बा अंदर आया। दरवाजा दोबारा बंद कर दिया गया। मैंने ऊपर जाकर बोतल और डिब्बा उठा लिया। मुझे इस वक्त किसी किस्म की हाजत महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने पानी और बिस्किट एहतियात से इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि अखराज का मसला पैदा ना हो। अगर से मजबूरी थी, इसके बावजूद इस बंद तहखाने में कुछ करने के ख्याल से मुझे वहशत हो रही थी। मैंने थोड़ा सा पानी पिया और दोबारा सोने के लिए लेट गया। इस दफा फौरी तौर पर नींद नहीं आई। मुख्तलिफ सोचें दुश्मन लश्कर की तरह यके बाद दीगरे हमला आवर होती रहीं। अपना बचपन और मौजूदा हालात मुझे रह रह कर सोचने पर मजबूर कर रहे थे। मेरी जिंदगी एक नॉर्मल लड़के की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना मैंने अपने माँ बाप को देखा था और ना ही अपने खानदान से वाकिफ था। होश संभाल कर खुद को जमशेद पैलेस में पाया। मुझे जल्द मालूम हो गया कि मैं वहां सिर्फ परवरिश पा रहा हूँ। मेरा जमशेद अली खान से कोई रिश्ता नहीं है। फिर 12 साल की उम्र से मुझ पर पुरअसरार हमले होने लगे। मुझे अगवा करने और मारने की कोशिशें की गईं। मेरा एक मुहाफिज इन कोशिशों की नजर हो गया। फिर हसन अली आया और उसने न सिर्फ अब तक मुझे दुश्मनों से महफूज रखा था, बल्कि इनसे बचने की तरबियत भी दे रहा था। इसके बावजूद मामूल से हटकर वाक़यात मेरा ताक़ुब कर रहे थे। न जाने कब नींद आ गई, लेकिन यह कच्ची और चौंकती हुई नींद थी। सुबह जैसे ही तहखाने का फौलादी गेट खुलने की आवाज़ आई, मैं उठ बैठा। इस वक्त शिद्दत की भूख भी लग रही थी। सारी रात कच्ची नींद और फिर नम फर्श पर लेटने की वजह से जिस्म टूट रहा था। अंदर आने वाला मेरे लिए अजनबी था। यह सूरज से बदमाश के बजाय किसी कदर मजलूम लग रहा था। उसने एक छोटी सी ट्रे उठा रखी थी। इससे एक कप भाप उड़ाता साफ नजर आ रहा था। चाय के साथ एक अदद बंद था। उसे ट्रे मेरे सामने रखती वो बेधड़क मेरे पास चला आया। गालबन वो कोई गैर अहम शख्स था। अगर मैं उसे काबू कर भी लेता तो मुझे कोई फायदा नहीं होता, यानी मेरे भाग निकलने का इम्कान नहीं था। साहब नाश्ता कर लो, फिर ऊपर चलकर लैट्रीन से फारिग हो जाना। मैं लैट्रीन जाने की जरूरत भी महसूस कर रहा था, मगर पहले भूख का मदावा करने का फैसला किया। अगरचे बंद और बिस्किट के डिब्बा मेरी खुराक के लिहाज से नाकाफी थे, फिर भी खुदा का शुक्र अदा किया कि इस कैद के आलम में इतना ही मिल गया है। बंद खाकर और चाय पीकर मैंने इसकी तरफ देखा। चलो ऊपर आओ साहब, उसने बिला तकल्लुफ आमादगी जाहिर की। मेरा ख्याल था कि ऊपर कोई हथियार बदस्त मौजूद होगा, मगर तहखाने के इस दरवाजे के सामने कोई नहीं था। दरवाजा एक गैलरी के आखिरी सिरे पर खुल रहा था और जगह की हालत से लगता था कि यह कोई जेर तामीर मकान है। दीवारों पर प्लस्तर तक नहीं था। जहाँ तहखाने का दरवाजा था, इसके साथ ही गैलरी के सिरे पर बाहर जाने वाले रास्ते पर इसी तरह का फौलादी दरवाजा था। गैलरी के दाएं बाएं जो बगैर चौखटों के खला थे, ये कमरे थे जो अभी प्लस्तर के मोहताज थे। अलबत्ता खिड़कियों पर फौलादी ग्रिलें थी, गोया मेरे फरार के रास्ते मस्तूद थे। इस गैलरी के आखिरी सिरे पर नामुकम्मल वाशरूम था, जहां सिर्फ पानी और नकासी के सुराख के अलावा कोई सहूलत नहीं थी। मैंने इन्हीं दस्तयाब सहूलतों से इस्तेफादा किया। वाशरूम का दरवाजा तक नहीं था। वो बेचारा एक तरफ आड़ में खड़ा हो गया। बाहर आकर मैंने उससे पूछा, ये कौन सी जगह है? पता नहीं साहब, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। हम खुद इधर कैद है, यानी अगर मैं तुम्हें यरगमाल बना लूं तो? वो मुस्कुराया। कोई फायदा नहीं होगा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक तुम मुझे मार भी दो तो भी। तुम यहाँ कैद क्यों हो? पता नहीं साहब, हम तो मजदूर हैं। ये काम के लिए लाया और इधर कैद कर दिया। 4 दिन हुए, अब हम इनका खिदमत करता है, चाय बनाता है, बर्तन धोता है। क्या ये जगह तामीर शुदा है? मैंने ताज्जुब से इर्द गिर्द देखा। बस ये हिस्सा ऐसे ही है, बाकी तो बड़ा अच्छा कोठी है। यहाँ कितने अफराद हैं?